یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب عباسی خلافت کا دور تھا اور بغداد دنیا کا سب سے خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا۔ اسی بغداد میں سوکھے حریر یعنی کپڑے کی منڈی میں ایک تاجر کی دکان تھی جس کا نام تھا یوسف بن یعقوب۔ وہ ایک ماہر کپڑا فروش تھا۔ ریشمی کپڑے، مخمل، سوتی وستر، یمنی شالیں اور کئی قیمتی دوپٹے بیچا کرتا تھا۔ لیکن یوسف عام تاجر نہیں تھا، وہ نہایت ذہین اور غیر معمولی فہم رکھنے والا شخص تھا۔ جب سمرقند سے قافلہ آتا تو اسے پہلے ہی اندازہ ہو جاتا کہ کس کپڑے کی قیمت بڑھنے والی ہے۔ جب تاجر بغداد سے یمن کا سفر کرتے تو یوسف کو معلوم ہوتا کہ کون سا راستہ زیادہ نفع دے گا۔ بغداد کے مختلف بازاروں میں اس کی 3 دکانیں تھیں۔ اس کا محل شہر کے امیر علاقے میں تھا جہاں خسرو اور امرا رہتے تھے۔ اس کے پاس خادم بھی تھے اور اس کے خزانوں میں اتنا مال اور دولت جمع تھی کہ 100 گھرانوں کا خرچ نکال سکتی تھی۔ لیکن ایک بات ایسی تھی جو یوسف کو سب سے الگ کرتی تھی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ دنیا میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ تقدیر تو صرف کمزور لوگوں کا بہانہ ہے۔ میں اپنی عقل اور محنت سے یہاں تک پہنچا ہوں، اس میں اللہ کا کوئی احسان نہیں، یہ سب میری قابلیت کا نتیجہ ہے۔ جب لوگ اسے کہتے کہ یوسف اللہ کا شکر ادا کرو تو وہ ہنستا اور کہتا، شکر کس بات کا، میرا مقام میں نے خود بنایا ہے۔ بازار میں لوگ چپکے چپکے کہا کرتے، یوسف بہت ذہین ہے مگر اس کا غرور ایک دن اسے برباد کر دے گا۔ لیکن یوسف کو ان باتوں کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مست رہتا اور خود کو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتا تھا۔ ایک دن عصر کی نماز کا وقت قریب تھا اور سورج مغرب کی طرف جھک رہا تھا کہ ایک درویش یوسف کی دکان پر آ پہنچا۔ اس کی عمر قریباً 70 برس رہی ہوگی۔ چہرے پر نور، آنکھوں میں ایسی گہرائی جیسے سمندر، بال اور داڑھی بالکل سفید ہو چکی تھیں۔ السلام علیکم رحمت اللہ، درویش نے سلام کیا۔ یوسف نے بے رخی سے نظر اٹھائی اور آہستہ جواب دیا، وعلیکم السلام، کیا چاہیے؟ اگر بھیک مانگنے آئے ہو تو آگے بڑھ جاؤ، یہ کپڑوں کی منڈی ہے، فقیروں کی نہیں۔ درویش نے مسکرا کر دیکھا۔ وہ مسکراہٹ عجیب تھی جس میں کوئی چھپے ہوئی دانائی تھی۔ نہیں بیٹا، میں بھیک مانگنے نہیں آیا، میں مسافر ہوں، دور کے سفر سے آیا ہوں، صرف کچھ دیر یہاں بیٹھ کر آرام کر لو۔ یوسف نے اشارہ کیا، بیٹھ جاؤ، مگر گراہکوں کا راستہ مت روکنا۔ درویش دکان کے ایک کونے میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا جھولا نیچے رکھا، اسے تکیا بنایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ شام کا وقت تھا۔ یوسف حساب کی کتابوں میں لگا ہوا تھا، کتنے دینار آئے، کتنے خرچ ہوئے۔ اسی دوران درویش نے آنکھیں کھولی اور پوچھا، بیٹا یہ دکان تمہاری اپنی ہے؟ ہاں میری ہے، اور صرف یہی نہیں، اس شہر میں میری 3 دکانیں ہیں۔ یوسف نے فخر سے جواب دیا، ماشاء اللہ، اللہ نے تمہیں بہت نوازا ہے۔ یوسف نے قلم نیچے رکھ دیا اور بولا، بزرگوار، یہ اللہ کی دین نہیں، میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ میں 4 سال کا تھا جب میرے والد کا انتقال ہوا۔ والدہ نے پالا، پھر میں نے کم عمر میں ہی کام شروع کیا۔ پہلے ایک تاجر کے یہاں خادم بنا، پھر منڈی میں چھوٹا سا ٹھیلا لگایا، پھر آہستہ آہستہ اپنا کاروبار کھڑا کیا۔ یہ سب میری محنت ہے، میرے ذہن کا کمال ہے۔ درویش کچھ دیر چپ رہے اور پھر پوچھا، تو تمہارا مطلب ہے کہ تقدیر جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں، یوسف نے فوراً کہا، تقدیر تو صرف ایک کہانی ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنا مقام اپنی محنت سے بناتا ہے۔ درویش نے گہری سانس لی، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک ابھری۔ اچھا، تو اگر میں کہوں کہ میں تمہاری تقدیر خرید سکتا ہوں؟ یوسف چونک گیا کہ کیا کہا؟ میں تمہاری قسمت خریدنا چاہتا ہوں۔ یوسف زور سے ہنس پڑا، اس کی ہنسی دکان میں گونج گئی۔ بزرگوار، لگتا ہے سفر کی تھکان نے آپ کی عقل پر اثر کیا ہے۔ قسمت بھی کوئی بیچنے کی چیز ہوتی ہے؟ کیوں نہیں، درویش نے پورے سکون سے کہا، جب تم کہتے ہو کہ تقدیر ہوتی ہی نہیں تو اسے بیچنے میں تمہیں کیا تردد؟ اگر یہ محض ایک افسانہ ہے تو یہ سودا تمہارے لیے فائدے کا ہے۔ یوسف کا تیز دماغ چلنے لگا۔ ہم بزرگ کیا مطلب رکھتے ہیں؟ درویش نے اپنا جھولا اٹھایا اور اس میں سے ایک تھیلی نکالی۔ تھیلی کھولی تو اس میں سے چمکتے ہوئے سنہری دینار جھلکنے لگے۔ یہ دیکھو، 10,000 دینار، یہ تمہارے ہیں، صرف ایک شرط کے ساتھ۔ کون سی شرط؟ یوسف کی آنکھیں تھیلی پر جم گئی۔ تم ایک کاغذ پر لکھ دو کہ تم نے اپنی تقدیر مجھے 10,000 دینار میں بیچ دی ہے، یعنی جو کچھ بھی تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے، خواہ خوشی ہو یا غم، مال ہو یا محتاجی، صحت ہو یا بیماری، کامیابی ہو یا ناکامی، سب کچھ میرا حق خوش ہوگا، اور یہ 10,000 دینار تمہارے۔ یوسف کے دل میں لالچ جاگ اٹھا۔ 10,000 دینار،
इतनी रकम में वो एक और दुकान खोल सकता था, और वैसे भी वो तकदीर पर यकीन ही नहीं रखता था, तो ये तो सीधा सीधा नफे का था। ठीक है, मैं तैयार हूँ। दरवेश ने एक पुराना कागज और कलम निकाला, साथ में स्याही भी रखी। वो बोला, लिखो, मैं यूसुफ बिन याकूब अपनी पूरी तकदीर इस दरवेश को 10,000 दीनार में बेच रहा हूँ। यूसुफ ने बगैर एक लम्हा जाया किए वो जुमले लिख दिए, फिर अपना नाम लिखा और नीचे अपनी मुहर लगा दी, वही खास मुहर जो वो तिजारत के कागजात पर लगाया करता था। दरवेश ने कागज उठाया, गौर से देखा, फिर उसे अपनी झोली में रख लिया। फिर उसने 10,000 दीनार की थैली यूसुफ के सामने रख दी। कहा, ये लो तुम्हारे दीनार, गिनने की जरूरत नहीं, पूरे हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। यूसुफ ने फिर भी गिने, सचमुच 10,000 थे। दरवेश खड़ा हुआ, अपनी झोली संभाली, कहा, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। यूसुफ, याद रखना, गुरूर के बाद तबाही आती है। ये कहकर वो दुकान से बाहर निकल गया। गली में यूं गुम हुआ जैसे दरख्त के पीछे हवा ओझल हो जाए। यूसुफ खुशी से झूम उठा, क्या सौदा किया मैंने, 10,000 दीनार, बिल्कुल यूं ही। वो बूढ़ा नादान था और मैं चालाक। उसने थैली अपने खजाने में छिपाई और घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में सोचता रहा, कल मैं बगदाद के दूसरे इलाके में एक और दुकान खोलने की तैयारी करूंगा, मेरा कारोबार और बढ़ेगा। अगला दिन आया। यूसुफ सुबह जल्दी उठा, फिर अपनी दुकान की तरफ रवाना हुआ। जब वो दुकान पहुंचा तो देखने वालों ने कहा, यूसुफ साहब, आज आप मुबारक हो। कल रात आपका एक और तिजारती काफिला यमन से वापस आया है। उसमें बहुत साल था, रेशमी कपड़े, मखमली शालें और कीमती वस्त्र। यूसुफ खुश हुआ, वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मगर थोड़ी देर बाद एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वो काफिले का सरदार था। साहब, साहब, वो हांफते हुए बोला, क्या हुआ? साहब, रास्ते में काफिले पर डाका पड़ गया। यूसुफ का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? हाँ साहब, समुंदर के किनारे जब हम बसरा के पास से गुजर रहे थे तो छिपे हुए डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने सारा माल लूट लिया, कुछ आदमी जख्मी भी हुए। मैंने बहुत कोशिश की बचाने की, मगर यूसुफ के हाथ से कलम गिर गया। ये कैसे हो सकता है? उसका सामान करीबन 3 लाख दीनार का था, सब कुछ लुट गया। मगर यूसुफ ने खुद को संभाला। चलो कोई बात नहीं, ये तिजारत का हिस्सा है, नुकसान होना भी मुमकिन है। कुछ दिन और गुजरे, यूसुफ ने अपना काम जारी रखा, मगर फिर एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। एक आदमी आया, वो बगदाद के काजी का नायब था। यूसुफ बिन याकूब, जी मैं ही हूं, तुम्हें काजी ने बुलाया है, फौरन चलिए। मगर क्यों? मैंने क्या किया है? वहां जाकर मालूम हो जाएगा। यूसुफ घबरा तो गया, मगर इनकार की गुंजाइश न थी। वो काजी के दरबार में पहुंचा। वहां एक और ताजिर खड़ा था, राशिद। यही वो शख्स था जो बरसों से यूसुफ का सख्त हरीफ था। काजी ने यूसुफ से पूछा, क्या तुमने राशिद के माल में मिलावट की? यूसुफ चौंक उठा, नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? काजी ने कहा, राशिद का कहना है कि तुमने उसे जो कपड़ा भेजा था वो खालिस नहीं था, उसमें मिलावट थी। उस कपड़े से बने लिबास जब बाजार में फरोख्त के लिए गए तो पकड़े लिए गए। ये सब राशिद की चाल थी। उसने यूसुफ को फंसाने के लिए झूठी साजिश रची थी। राशिद अपने साथ झूठे गवाह भी लाया था। काजी ने फैसला सुनाया, यूसुफ बिन याकूब, तुम पर जुर्माना आयद किया जाता है और 3 महीने के लिए तुम्हारी तिजारत बंद रहेगी। यूसुफ के कदम लड़खड़ा गए। इतनी भारी रकम! उसने अपने कपड़े बेचे, कुछ सामान रहन रखा और वो 10,000 दीनार जो उसने दरवेश से लिए थे सब लगाकर जुर्माना अदा किया। 3 महीने तक उसकी दुकानें बंद रहीं। इस दौरान उसके तमाम ग्राहक उसे छोड़कर कहीं और रोजी कमाने लगे। जब 3 महीने बाद यूसुफ ने अपनी दुकान दोबारा खोली तो कारोबार पहले जैसा ना रहा। लोग अब उसकी बात पर एतबार नहीं करते थे। कहते थे यूसुफ ने मिलावट वाला माल बेचा था। 1 साल गुजर गया। यूसुफ का कारोबार आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता गया। फिर आग का वाकया पेश आया। एक रात उसकी सबसे बड़ी दुकान में आग भड़क उठी। कोई नहीं जानता आग कैसे लगी। शायद चराग से, शायद किसी दुश्मन की कारस्तानी थी। आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। कपड़े जल गए, कीमती शालें राख हो गईं, कागजात जलकर राख बन गए। यूसुफ टूट चुका था। कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी हवेली बेचनी पड़ी। उसकी बीवी, जो हमेशा उसकी दौलत की वजह से उसके साथ थी, भी उसे छोड़कर मां के घर चली गई। यूसुफ के पास अब कुछ भी ना बचा था, न दुकान, न घर, न बीवी, न नौकर। सब कुछ खत्म हो गया। वो अब खुद एक फकीर बन चुका था। वही यूसुफ जो कभी शहर का सबसे अमीर ताजिर था। 3 साल और गुजर गए। यूसुफ अब गलियों में भटकता फिरता था। कभी कहीं से रोटी का टुकड़ा मिल जाता, कभी किसी जगह से कुछ सिक्के।
वो उन्हीं गलियों में फिर रहा था जहां कभी उसकी शान और शौकत थी। वो उसी बाजार में भीख मांगता था जहां कभी उसकी दुकान हुआ करती थी। अब लोग उसे पहचानते भी ना थे। कोई कहता ये दाढ़ी वाला फकीर कौन है, कोई कहता जाने दो कोई आवारा होगा। यूसुफ रात को मस्जिद के बाहर सोता, सर्दी से कांपता, भूख से निढाल। एक रात जब वो बिल्कुल अकेला था, उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। या अल्लाह, क्या ये सब मेरे गरूर की सज़ा है? क्या ये मेरे उसी सौदे का नतीजा है? जिंदगी में पहली बार उसकी जुबान से अल्लाह का नाम सच्चे दिल से निकला। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था। मैंने तेरी तकदीर का इनकार किया। मैंने खुद को तेरे ऊपर समझा। मुझे मुआफ़ कर दे या रब, मुझे मुआफ़ कर दे। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सिसकियां रात की खामोशी में गुम हो गईं। कुछ महीने और गुजर गए। एक दिन यूसुफ उसी जगह बैठा था जहां कभी उसकी पहली दुकान हुआ करती थी। यूसुफ ने ऊपर देखा। वही दरवेश खड़े थे, वही सफ़ेद बाल, वही नूरानी चेहरा, वही झोली और वही लकड़ी का आसा। यूसुफ के मुर्दा दिल में जैसे जान पड़ गई। वो उठकर उनके कदमों पर गिर पड़ा। बुजुर्ग, आप सचमुच आप ही हैं? वो रोते हुए बोला। उठो बेटा, उठो। दरवेश ने उसे सहारा दिया। बुजुर्ग, मुझे मुआफ़ कर दीजिए। यूसुफ की आवाज़ लरज रही थी। मैं समझ गया हूँ, मैं सब समझ गया हूँ। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था, कितना गुनहगार। क्या समझ आया यूसुफ? यूसुफ ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं समझ गया कि तकदीर होती है, अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ है। जिस दिन मैंने अपने नसीब का सौदा किया, उसी दिन से मेरी बर्बादी शुरू हो गई। हर रोज़ कोई ना कोई मुसीबत टूट पड़ी। मेरा काफिला लुटा, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा, मेरी दुकान जल गई, मेरा घर बर्बाद हुआ, मेरी बीवी मुझे छोड़ गई। 3 साल से मैं जिल्लत में जी रहा हूँ। यूसुफ ने दरवेश की तरफ देखा। बुजुर्ग, अब मुझे यकीन हो गया कि इंसान की मेहनत ज़रूरी है, मगर हर फैसला अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। इंसान कितनी भी चालाकी कर ले, जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ नहीं बनता, और जब अल्लाह चाहे तो कोई ताकत अल्लाह के फैसले को रोक नहीं सकती। दरवेश ने मुस्कुराकर अपना झोला खोला और उसमें से वो पुराना कागज़ निकाला, वही कागज़ जिस पर यूसुफ ने अपनी तकदीर बेचने के अल्फाज लिखे थे। ये लो यूसुफ, तुम्हारा कागज़। यूसुफ ने कांपते हाथों से कागज़ थामा। उसे देखते ही उसकी आंखें भर आईं। बुजुर्ग, मगर अब ये तो आपकी तकदीर है। नहीं यूसुफ, ये तो सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए था। हर किसी की अपनी तकदीर होती है और हर किसी की तकदीर अल्लाह लिखता है। लेकिन तुम तकदीर पर यकीन ही नहीं रखते थे और सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा रखते थे। तुम्हें बस ये सिखाना था कि इंसान चाहे कुछ भी कर ले, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। बेटा, कभी अपने आप पर या अपनी मेहनत पर गरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान गरूर करता है तो वो उसी वक्त अपनी बर्बादी के परवाने पर दस्तखत कर देता है। यूसुफ ने कागज़ अपने सीने से लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। या अल्लाह, ए मेहरबान, मुझे मुआफ़ कर दे। दरवेश ने उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, अल्लाह बख्शने वाले हैं, वो मुआफ़ कर देते हैं। अब तुम अपनी ज़िंदगी दोबारा संभालो। मेहनत करना मगर तकब्बुर ना करना। अपने हाथ की कमाई पर भरोसा रखना, मगर अल्लाह से बढ़कर नहीं, समझे? जी बुजुर्ग जी। और याद रखना, जो सबक तुमने सीखा है उसे दूसरों तक पहुंचाना, ताकि कोई और तुम्हारी गलती न दोहराए। फिर दरवेश ने झोले से एक और थैली निकाली। ये लो, कुछ दीनार हैं, इनसे एक छोटी सी शुरुआत करो, फिर देखना अल्लाह क्या करते हैं। यूसुफ ने थैली खोली, उसमें 500 दीनार थे। बुजुर्ग, आप कौन हैं, कहां से आते हैं? दरवेश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूं यूसुफ, अल्लाह का बंदा। कभी मैं भी एक मगरूर ताजिर था और मेरे पास भी माल था, लेकिन मुझे फिर तकदीर का राज समझ आ गया, बल्कि मुझे भी किसी ने समझाया था। अब मैं दूसरों को आगाह करता हूं, बदले में चाहे मुझे अपना माल क्यों न खर्च करना पड़े। आखिर वो माल मेरे किस काम का? मेरी जिंदगी इतनी नहीं जितना मेरे पास माल है। अब इसे अच्छे कामों में ही लगाना अक्लमंदी है। ये कहकर बुजुर्ग वहां से चले गए। उस रात यूसुफ ने 500 दीनार संभाल कर रखे और एक छोटी सी हवेली के बाहर पनाह ली। सुबह जब आंख खुली तो उसने वुजू किया, इस बार सच्चे दिल से। फिर फजर की नमाज अदा की, जिंदगी में पहली बार इतने सुकून के साथ। नमाज के बाद वो देर तक बैठा सोचता रहा, अब मैं क्या करूं? क्या दोबारा कारोबार शुरू करूं?
उसने फैसला किया कि इस बार आगाज बहुत छोटा होगा। वो बाजार गया, एक ठेले में कुछ सस्ते कपड़े खरीदे और गली गली जाकर बेचने लगा। पहले दिन सिर्फ 10 दरहम कमाए, मगर चेहरे पर इत्मीनान था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह का करम है। वक्त के साथ उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों में उसने छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। 1 साल में वो दुकान भी खरीद ली, मगर अब यूसुफ वो नहीं रहा था जो पहले था। वो हर सुबह फज्र लाजमी पढ़ता, तिजारत से जो कमाता उसमें से रोज कुछ न कुछ सदका निकालता, हर फैसले से पहले अल्लाह से रहनुमाई मांगता। कामयाबी मिलती तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता, नुकसान होता तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर सब्र करता। 5 साल गुजरे और यूसुफ दोबारा एक कामयाब ताजिर बन चुका था। उसकी 2 दुकानें थीं, अपनी हवेली थी, इज्जत थी, मगर तहे दिल से वो एक बदला हुआ इंसान था। साल गुजरते गए, यूसुफ बूढ़ा होने लगा। उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी। वो अक्सर नवजवान ताजिरों को अपने पास बिठाता और अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुनाता। वो कहता, देखो मेरे भाइयों, मैं तुम्हें एक बहुत अहम बात बताता हूँ। ज़िंदगी में मेहनत करो, अक्ल से काम लो, तिजारत में समझदारी ज़रूरी है। ये सब सलाहियतें अल्लाह ने तुम्हें दी हैं, उन्हें इस्तेमाल करना तुम्हारा फ़र्ज है। मगर कभी ये ना समझना कि सब कुछ तुम्हारे अपने हाथ में है। कभी ये गरूर न करना कि कामयाबी सिर्फ तुम्हारी चालाकी या मंसूबाबंदी का नतीजा है, क्योंकि तकदीर अल्लाह के हाथ में है। तुम्हारी मेहनत ज़रिया है, मगर नतीजा वही देता है जिसे वो चाहे। मैं वो शख्स था जो तकदीर को मानता ही न था। मैंने अपनी किस्मत बेच दी थी महज समझकर, मगर उसी दिन से मेरी ज़िंदगी बर्बाद होना शुरू हुई। 3 साल तक मैं गलियों में भटकता रहा, भीख मांगता रहा, जिल्लत उठाता रहा। जब मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है और जब मैंने सच्चे दिल से तौबा की, तब अल्लाह ने मेरी तकदीर मुझे लौटा दी। फिर उसी ने मुझे इज्जत दी, रिस्क दिया और दोबारा खड़ा कर दिया। लोग उसकी बातें सुनते और हैरान रह जाते। कुछ को यकीन ही ना आता, कुछ गहरी सोच में डूब जाते। एक नवजवान ने पूछा, मगर यूसुफ साहब, वो दरवेश कौन थे? बेटा, वो जो कोई भी थे, इंसान अपने नाम से नहीं काम से पहचाना जाता है, और वो जो काम करके गए हैं वो याद रखा जाएगा हमेशा। जो भी थे, उसी दिन ने मेरी जिंदगी बदल दी और उसी सबक ने मुझे इंसान बनाया। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जब यूसुफ बीमार पड़ गए तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरे पास एक कागज है, वो मेरे संदूक में रखा है। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो इस कागज को मेरे साथ दफना देना। बेटे ने हैरत से पूछा, कौन सा कागज अब्बा जान? वही कागज जिस पर मैंने अपनी तकदीर बेचने का इकरार लिखा था। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है, इसे मेरे साथ ही जाना चाहिए। बेटे ने सर झुकाकर कहा, जी अब्बा, जैसे आप चाहेंगे वैसे ही होगा। कुछ दिन बाद यूसुफ का इंतकाल हो गया। लोग बड़ी तादाद में जनाजे में आए, क्योंकि यूसुफ अब शहर में एक नेक और बावकार इंसान के तौर पर पहचाने जाते थे। जब उन्हें कब्र में उतारा गया तो वो कागज़ भी उनके साथ रखा गया, वही कागज़ जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल दिया था। हसन अल बसरी कुरान एकेडमी के साथ कुरान सीखें। हम दुनिया भर में स्काइप, जूम और व्हाट्सएप के जरिए कुरान की तालीम देते हैं। हम मुब्तदियों के लिए कुरान तजवीद के साथ किरत कोर्स, कुरान तर्जुमा, कुरान हिफ्ज और तफसीर के कोर्सेज पेश करते हैं। काबिल और तरबियत याफ्ता फीमेल और मेल असातिज़ा के साथ कुरान सीखें। हमारे साथ शामिल होने के लिए जल्दी करें। हमारी वेबसाइट विजिट करें hasanalbasriquranacademy.com। व्हाट्सएप नंबर 030639703776।